Hello everyone. So I'm here to present one more important video which is based on Z essay writing. As most of the people are asking repeatedly कि सर ऐसे कैसे लिखना है, आज तक हमने तो माय फ्रेंड और इंडिया या काओ के ऊपर ही लिखा है, उससे ज़्यादा we are not in the habit of writing it. Actually it is very normal that it was not used essay writing, it was not there after our basic classes. Essay writing was not there in our curriculum, so obviously we are not in the habit of writing it. तो अब जेट ने सडनली ये इंट्रोड्यूस कर दिया लास्ट 2 ईयर से, तो अब हमें वापस इसको पता होना चाहिए कैसे लिखना है. एंड सो इन दिस सेशन गाइज आई एम गोइंग टू टेल you each and everything about the Z essay writing, and I'm sure, as always, after looking at this particular video, your doubts will be resolved, and I'm sure you can write a better essay after watching this particular video. ठीक है, तो let's begin. My name is Lokesh Agrawal, and I have already taken many videos, and in future also I'm going to take a lot of videos. So if you have not subscribed my channel, you can do that, and you can check my previous videos as well related to Z and other exams, and more upcoming videos are lined up. So, and do not forget to like it and share it. So let's begin, guys. So in this Z essay writing, if you can see, I have divided this PPT into 5 major parts. Why essay writing in Z? Why they have introduced this particular aspect, essay writing in Z? How we should prepare for this particular aspect, essay writing? Which mistakes we need to avoid? Past year essay topics, so that you will get an idea कि किस तरह के topic आए हैं, and what are the expected essay topics based on the current environment or past happening which has happened in the current year. So I'll tell you the expected essay topic also, so that you can just prepare about those topic as well. थोड़ा सा idea आप ले सकते हो. Essay writing is obviously it is going to be checked only for XLRI, or at the time of interview its mark is not going to be added. तो जो लोग XLRI टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली XLRI टारगेट नहीं कर रहे हो, बट आगे जब वेट लिखने जाओगे तो उसमें भी यही चीज आपको तैयार करनी है गाइस. इज राइटिंग असेसमेंट टेस्ट और essay writing is almost same thing. So even if you're not targeting XLRI, then also this session is very helpful for you guys, because वेट में काम आने वाला है. ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखो, और कोशिश करो कि जो भी मैं चीज बता रहा हूं उसमें से आप अपने मेन पॉइंट निकाल सको और उसको यूज कर सको. सो लेट्स बिगिन. व्हाई एसे राइटिंग इन जेट? एसे राइटिंग होता क्या है? व्हाट इज एन एसे? एन एसे इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइडियाज ऑन द गिवन टॉपिक. तो जो भी टॉपिक दिया गया है, we have to collect our ideas and we have to put it in front of the viewers, right? What we expect and what we can understand from this particular topic. Sorry. So an essay explore various aspects of a given topic in a logical sequence that comes to a proper conclusion. तो इसमें ना अभी हम जब आगे बढ़ेंगे तो आई टेल यू कि ऐसे कैसे लिखना होता है. क्या हम शुरू करें और लिखते जाएं लिखते जाएं लिखते जाएं? इज इट ए गुड ऐसे? नो, इट इज नॉट ए गुड ऐसे. सो आई टेल यू कि उसको डिवाइड कैसे करना होता है. इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसका बॉडी क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या होता है. तो वही बोल रहा है, एन ऐसे एक्सप्लोर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ए गिवन टॉपिक इन ए लॉजिकल सीक्वेंस एंड कम्स टू ए प्रॉपर कंक्लूजन. देयर हैज टू बी सम इंट्रोडक्शन and there has to be some conclusion as well. You cannot just write it like in a one paragraph kind of thing. It is not considered a good essay. A good essay is one which has a captivating beginning, a comprehensive body and a logical conclusion. So जो मैं अभी बता रहा था वो अगली लाइन में आई गया है. तो good essay is considered to be the captivating, मतलब catching होनी चाहिए, related होनी चाहिए, captivating beginning, a comprehensive body and a logical conclusion. तो आपको ये 3 चीजों पे लिखना है. इंट्रोडक्शन क्या है, बेसिक एजेंडा ऑफ द ऐसे राइटिंग, मेन पॉइंट्स जो आपके होंगे वो बॉडी के अंदर आएंगे, और फिर आपका कंक्लूजन. अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यू के फॉर्म में हो या अगेंस्ट में हो, आप यहाँ पे उसको कंक्लूड कर सकते हो व्हाट एवर यू हैव रिटन ओवर देयर. तो अभी देखते हैं हम कैसे कैसे उसको अप्रोच करें. व्हाई ऐसे इज इंक्लूडेड, व्हाट दे वांट टू चेक? It's nothing. Basically they want to check, as most of the institute have removed GD, so ऐसे राइटिंग इज ए बेटर वे टू लुक फॉर योर व्यूज कि आपको नॉलेज कितनी है. तो वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, एंड दे कैन डेफिनेटली आस्क सर्टेन क्वेश्चन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. उनको एक पॉइंट मिल गया है कि भैया आपने जो लिखा था, आपने जेन्युइन लिखा था, आपको नॉलेज कितनी है, और उसमें से दे कैन आस्क सर्टेन क्वेश्चन. सो नाउ
इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी लिख के आ रहे हो, वट एवर यू हैव रिटन इन द एसे, यू नीड टू रिमेंबर दैट कि ये तुमने लिखा है। ऐसा ना हो कि तुम लिख के कुछ आ गए और जब इंटरव्यू के टाइम पे पूछा गया कि व्हाट आर योर व्यूज एंड व्हाई यू हैव रिटन लाइक दिस, तो पता चला कि तुम अलग ही घूम रहे हो। लिख के आए थे फॉर में, बोल रहे हो नहीं नहीं ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अ, तो वहां पे तुम लिख के आगे मान लो कि हाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया के अंदर, लेकिन तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि नहीं नहीं यार 2 बच्चों से क्या होगा, बच्चे तो जितने हो अच्छा है। और पता चला कि वहां पे तुम अगेंस्ट हो गए उस पॉइंट ऑफ व्यू के, या 1 चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए कि कम से कम 2 तो होने चाहिए। तो ऐसा ना हो कि अच्छा ये ऐसा मैंने लिखा था, तो पता चला कि तुम वहां पे ब्लैंक हो कि यार अच्छा मैं तो लिख के आया था 1 चाइल्ड, अब तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े दिन में बदल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी पॉइंट के अगेंस्ट में हो या फॉर में हो, यू हैव टू स्टिक विद दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Are you getting it? क्या बोल रहा हूँ मैं? तो whatever you have written it, you have to remember it, and if whatever question they asked, you should consistent with that particular point of view or whatever you have written over there. तो basically यही idea होता है कि क्यों पूछते हैं। What is being tested? So what is being tested? They are basically going to check कि you have the ability to think rationally or logically, कि आप सोच पा रहे हो किसी particular topic पे, even if you do not have an idea, कि आप थोड़ा सा उसके बारे में लिख सकते हो, लॉजिकली लॉजिक निकाल के रेशनल व्यू से उसको लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्टिवली। सो वॉट एवर यू हैव नॉलेज, आपको लिखना भी आना चाहिए, एक्सप्रेस करना आना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ना बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन हमें याद ही नहीं आता कि उस नॉलेज को कैसे एक्सप्रेस करना है, पॉइंट्स में कैसे लिखना है, व्यूज में कैसे लिखना है। तो खाली नॉलेज भी काम नहीं आएगी। ओनली नॉलेज इज नॉट हैव एनी बेनिफिट इफ यू कैन नॉट प्रेजेंट इट इन ए प्रॉपर मैनर और प्रॉपर स्ट्रक्चर। तो एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए योर पॉइंट ऑफ व्यू इफेक्टिवली, क्योंकि जीडी में तो वो हो जाता था, अब जीडी तो है नहीं, तो यहीं पे वो आपका नॉलेज पार्ट देख लेंगे कि आप एक्सप्रेसिव हो या नहीं हो, कितने अच्छे से आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर कि यार क्यों पूछा गया है, रेशनल क्या है उसके पीछे पूछने का। तो अगर आपको पर्पस पता होगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ऐसे लिख पाओगे। मैनेज कैसे करना है टाइम? आपके पास 25 मिनट का पूरा एक सेक्शन है ये बी, जिसमें आपको क्वेश्चन आएंगे जीके के और ऐसे राइटिंग। तो आप जीके के लिए 5 to 8 मिनट दे सकते हो, मोर देन इनफ। आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। नो नेगेटिव मार्किंग, एलिमिनेट करो, क्विक गैसेस करो और निकल लो। परसेंटाइल में इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ पास हो रहा है। तो जीके में अगर आप 6 to 7 या 5 to 6 भी आंसर कराओगे सही, तो हाई चांस है कि आप पास हो जाओगे। एंड अगेन जीके इज कंसिडर्ड टू बी ओनली फॉर एक्सेल, बाकी किसी इंस्टीट्यूट के लिए चेक नहीं हो रही है। तो आप जीके के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत हो जेड के लिए, क्योंकि मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है। तो स्टैटिक जीके, करंट जीके 5-6 क्वेश्चन आई थिंक मिल जाएंगे 25 में से। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, यू कैन मार्क ऑल द आंसर एज वेल। तो जीके पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना। ना आता है ऐसे, अब मेरे पास लगभग 20 मिनट बचे गाइस। देयर इज नो वर्ड लिमिट, आप याद रखना, देयर इज नो वर्ड लिमिट। व्हाई? बिकॉज 20 मिनट में यू हैव टू टाइप इट। कितना ही लिख लोगे यार, कितना ही लिख लोगे, 200 वर्ड, 250 वर्ड, 300 वर्ड मैक्सिमम। तो कोई वर्ड लिमिट नहीं है, टाइम की लिमिट है। तो आपको 25 मिनट में अगर ये दोनों चीजें खत्म करनी है तो 200 वर्ड भी आपको, अगर आदत नहीं है लिखने की, 200 वर्ड भी आपके लिए काफी है। यहाँ पे वर्ड का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और ना ही वो वर्ड देख रहे हैं कि आपने 200 का लिखा है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, छोटे वाले को कम देंगे, बड़े वाले को ज्यादा देंगे, ऐसा नहीं। मेन चीज दे आर चेकिंग योर नॉलेज एंड योर स्ट्रक्चर, कि आपने कितने अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट किया है। ठीक है, पॉइंट्स देख रहे हो। तो यहाँ पे कोई लेंथ नहीं देखी जा रही है कि 200 वर्ड का लिखा है, 250 वर्ड का लिखा है। दो चीजों पे खेल रहे हो कि आपने कितने अच्छे से, आपको टॉपिक की नॉलेज है और कितने अच्छे से आप उसको स्ट्रक्चर कर पाए हो, क्या आपने अपनी बात पूरी तरह से एक्सप्रेस की है या नहीं की है, राइट? दैट इज द मेन थिंग। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट? ऐसे आप क्या कर सकते हो, शुरू मत हो जाओ कि टॉपिक आया और शुरू हो, नहीं, थोड़ा सा पॉज लो, टाइम दो, 3 to 5 मिनट फॉर ऐसे प्रेप। ऐसे प्रेप मतलब पहले समझो कि पूछ क्या है, उस टॉपिक का सिग्निफिकेंस क्या है। कई बार अलग अलग चीजें होती हैं, कभी होता है कि डिटेल में बताओ, कभी होता है क्रिस्प बताओ, कभी होता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करो, कभी होता है कि यार आप इसके अगेंस्ट हो या फॉर में हो। तो डिफरेंट क्वेश्चन को पहले समझो कि है क्या, टॉपिक क्या है, फिर उसके बारे में लिखना शुरू करो। सिग्निफिकेंस क्या है उस टॉपिक का, लिस्ट की पॉइंट्स, जो भी आपके पास टॉपिक है। अगर आपको आता है तब भी की पॉइंट बनाओ, नहीं आता है तो उसमें जो हेडिंग है ना, वहां से उठा के थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचना शुरू करो कि क्या लिखना है। की पॉइंट बनाओ, उसके बारे में लिखो।
कंक्लूजन डिसाइड करो कि यार ये तो मैंने लिख दिया, मैं क्या लिखने वाला हूँ। फिर आपके पास टाइम होगा 12 से 15 मिनट का लिखने के लिए। तो आप, जैसे मैंने बोला, आप पहले 3-4 मिनट लो, 5 मिनट लो, मेन पॉइंट लिखो, फिर लिखना शुरू करो। इंट्रोड्यूस करो, मेन पॉइंट लिखो। 3 चीजें मैंने बताई थी, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो इंट्रोडक्शन आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हो कि क्या बोला गया है। कैपिटलिज्म के बारे में, तो कैपिटलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आपका जो टॉपिक है उसके बारे में लिखोगे और फिर कंक्लूड करोगे कि मेरे पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। तो 3 चीजों पे आपको इस तरह से लिखना है। जैसे मैंने बोला, टाइपिंग की थोड़ी सी आदत डाल देना अगर नहीं है तो, क्योंकि यू हैव टू टाइप इट। ये इस तरह से आप मैनेज कर सकते हो बड़े आराम से टाइम को, टाइम काफी है। नाउ व्हाट इज अ क्राइटेरिया फॉर ए गुड ऐसे? एक तो रिलेवेंस होनी चाहिए गाइस, कि जो भी पूछा गया है, कि आपने जो टॉपिक पूछा, पता चला टॉपिक हमने पूछा अगेन यूनिवर्सल सिविल कोड के बारे में, और तुम कुछ और ही लिख के आ गए वहां पे, तो पता ही नहीं चला तुम्हें यूनिवर्सल सिविल कोड क्या होता है। तो अगर आपको टॉपिक का रिलेवेंस नहीं है, यूनिवर्सल सिविल कोड होता है विच इज यूनिवर्सल फॉर एवरीवन, फॉर एवरी रिलीजन, फॉर एवरी कास्ट एंड फॉर एवरी काइंड ऑफ, क्या बोल सकते हैं उसको, पुअर, रिच एंड जो भी मीडियम ग्रुप होता है, तो उन सब के लिए रिलेवेंट होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। तो अगर आपको ये टॉपिक आया, इसके बारे में लिखने के आया, और आपको पता ही नहीं था और आप कुछ और लिखाए, तो वो रिलेवेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है, रिलेवेंस होना चाहिए। यू हैव रेड द क्वेश्चन केयरफुली एंड दैट एवरीथिंग यू राइट रिलेट टू इट डायरेक्टली एंड नॉट वेगली। जैसे तुम बचपन में लिख के आते थे, बस लिखना शुरू कर दिया, यूनिवर्सल क्या होता है, फिर सिविल क्या होता है, फिर कोड क्या होता है, ऐसे वर्ड तोड़े तुमने और उसके बारे में तुमने लिखना शुरू कर दिया। ऐसे ही करते हो जनरली, मुझे पता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। कभी कभी चॉइस आ जाती है 2 टॉपिक के बीच में, और दिस जस्ट लास्ट ईयर 2 ऐसे आए थे, मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर 2 चॉइस आ रही हैं, तो जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, नॉलेज बेस्ड टॉपिक नहीं है, मुझे नॉलेज मतलब यूनिवर्सल कोड के बारे में नहीं पता, बट मेरे को पॉपुलेशन के बारे में तो पता है कि पॉपुलेशन बम इंडिया में फूटने वाला है और हम चाइना से आगे निकलने वाले इस कैटेगरी में, तो आप इसके बारे में तो लिख ही सकते हो। तो टॉपिक ऐसा उठाना जो, अगर नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जनरल टॉपिक उठाना, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक उठाना जिसके बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, रिलेवेंस होना चाहिए, मतलब बेसिकली नॉलेज ऑब्वियसली होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज। अगर आपके पास डेटा है, आप डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। रेफरेंस दे सकते हो फैक्ट्स का कि ये हुआ था, ये डेटा है, शो कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम्पल, रिलेटेड एग्जाम्पल अगर आपके पास है, तो ये पूरा नॉलेज बेस्ड हो गया। अगर आपको टॉपिक की नॉलेज होगी तभी आप इतना कुछ कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर आप फट्टे ही मारोगे जैसे मारते हैं, वो नहीं करना है। अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, नाउ दिस शोज यू हैव नॉट ओनली नॉलेज and understanding but also possess the ability to analyze, make judgment and explain clearly your position to others। मतलब आपके पास नॉलेज तो है ही, लेकिन साथ में आपके पास एक्सप्रेशन की भी एबिलिटी है, आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, जो मैंने शुरू में बताया था, एक्सप्रेस नहीं कर पाते कुछ लोग। नॉलेज बहुत सारी है लेकिन लिखने ही नहीं आता है, पॉइंट्स ही नहीं बता पा रहे कि क्या है, तो उसका फायदा नहीं है। तो आपको अरेंजमेंट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए उसको लिखने का, कि भैया आपने पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर उसको अच्छे से पॉइंट्स, की पॉइंट में हमने बॉडी लिखा, फिर उसका कंक्लूजन दिया, तो वो मजा आए पढ़ने वाले को। देयर शुड बी नो लूज एंड, ये नहीं मतलब कहीं से शुरू किया था कहीं पे आके खत्म हो गया। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए तुम्हारा, ऐसे जो ऊपर बोल रहे हो वही थ्रू आउट कंसिस्टेंटली मेंटेन करनी पड़ेगी। English language, here the concern is not with the style or beauty of the language. They are not looking for the English actually. They are not looking Shashi Tharoor over there. So you should know the basic English, but right use with right grammar, right punctuation, ये सब ठीक होना चाहिए। ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज नहीं चलेगा, नो स्लैंग लैंग्वेज, नो एब्रीविएशन। तो इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मल, स्ट्रक्चर होना चाहिए, ग्रामर ठीक होनी चाहिए, यूज ऑफ वर्ड्स सही होने चाहिए, अप्रोप्रिएट, स्ट्रक्चर पैराग्राफ होना चाहिए, स्पेलिंग और पंक्चुएशन होनी चाहिए सही। ये बस ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि भैया मैं कोई हाई फाई इंग्लिश यूज करने जा रहा हूँ किसी पर्टिकुलर वर्ड के लिए, दे आर नॉट गोइंग टू चेक दैट, राइट। बेसिक इंग्लिश बट सही इंग्लिश, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये है आपका गुड ऐसे लिखने का एक क्राइटेरिया जिसपे चेक होगा ये सब। 20 मिनट में क्या क्या कर सकते हो? What can you do in 20 minute essay writing test? In 20 minutes, if you have substantial information regarding the topic, then try to list down all important and relevant points with reference and related, जो हमने पहले भी अभी यूज किया था। Even if you don't have
अगर आपको पता ही नहीं कि भैया टॉपिक क्या है, देन ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि भैया जैसे एक टॉपिक आया था, मैं भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, जिंगोइज्म करके एक टॉपिक आया था, डेमोक्रेसी, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन एंड जिंगोइज्म कांट एग्जिस्ट टुगेदर या दे को एग्जिस्ट, इस तरह से आया था। जिंगोइज्म का मतलब नहीं पता था काफी सारे लोगों को, 90% जनता जिसने भी एक्सेल देखा उसको जिंगोइज्म का मतलब ही नहीं पता। अब वो घूमते रह गए, ग्लोबलाइजेशन पे लिख के आ गए। तो अगर आपको टॉपिक की नॉलेज नहीं है तो तब भी आपको उसको ना, अब ग्लोबलाइजेशन को पकड़ के चलो, गलत मत लिखो। अगर आपको नहीं पता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है और एक तरफ जिंगोइज्म की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली को एग्जिस्ट की बात कर रहा है। तो एक तरफ ग्लोबल तो हो सकता है, दूसरी तरफ लोकल हो, ग्लोबल एंड लोकल, तो ये तो हम बोलते ही हैं, है ना, ग्लोबल एंड लोकल, कैन दे को एग्जिस्ट। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो वो वर्ड नहीं आता, लेकिन फिर भी काम चल जाएगा तुम्हारा। जिंगोइज्म का मतलब होता है बेसिकली एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म। जो बंदा अपने देश के बारे में ही सोचता है, अगर किसी ने दूसरे देश के बारे में बोल दिया तो उसको खुंदक आ जाएगी, लड़ जाएगा तुमसे। एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म, एक तो पेट्रियोटिज्म होती है, हम सब लोगों को पता है कि हम इंडिया के जीतने पे खुश होते हैं, चीयर अप करते हैं इंडिया को, वो सब होता है। लेकिन एक बंदा जो बिल्कुल बात ही नहीं करता कि तुमने ये चाइना के कपड़े या चाइना का फोन ले कैसे लिया, वो एक्सट्रीम है। मतलब हम तो यूज करते हैं ना, तो हम पेट्रियोट हैं। लेकिन जो जिंगोइज्म होता है, जो एक्सट्रीम पेट्रियोटिज्म होती है, उसमें वो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं करता किसी और कंट्री के बारे में। तो क्या हम ग्लोबल और जिंगोइज्म, क्या दोनों चीजें एक साथ जा सकती हैं? इसके बारे में मैं भी और डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ ये बताऊं कि अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, तब भी थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको स्ट्रक्चर करा जा सकता है टॉपिक को। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसे इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग एंड गिव डिटेल्स, गिव वाइटल इंसाइट अबाउट अ पर्सन, that the person is clear and structured in his approach. You are not expected to know everything, right? But you can show that you are meticulous in your approach. मतलब भैया मेरे को नहीं पता, लेकिन मैंने कोशिश तो की, मैंने स्ट्रक्चर तो बनाया उसका, थोड़ा सा जो मेरे को आता था उसके बेसिस पे आई हैव रिटन सर्टेन पॉइंट्स, तो विच इज डिजायर्ड क्वालिटी बाय ऑल द बी स्कूल एंड नॉट ओनली एक्सेलर। तो ये हर किसी को पसंद आएगा। तुम जब वेट लिखने जाओगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, दे विल अप्रिशिएट कि भैया इसको नहीं आता था लेकिन इसने कोशिश की, इसने स्ट्रक्चर किया उसको ढंग से, जितना इसको समझ में आया उसने स्ट्रक्चर किया, फट्टे नहीं फेंके इसने, उल्टा सीधा नहीं। व्हाट दे वांट दिस मच ओनली, क्योंकि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा, टॉपिक जो आते हैं वो थोड़े मुश्किल आते हैं। जनरल टॉपिक आएंगे आप लिख पाओगे, लेकिन अगर टॉपिक नहीं आ रहा है तब भी यू हैव टू मेंटेन योर काम, लिस्ट डाउन करो पॉइंट्स एंड देन ट्राई टू राइट डाउन। क्लियर है? Now these are the topics. अब तुम खुद सोचो इसमें से तुम्हें कितने टॉपिक आते हैं। 2022 में चॉइस थी आपके पास। 2022 का टॉपिक था कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी कैन नॉट को एग्जिस्ट। अब कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म होता है कि भैया कुछ लोगों के हाथ में पावर है, दे आर यूजिंग इट, जो कैपिटल है, जो पॉलिटिक्स है, वो कुछ लोगों के हाथ में है और वो प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं उसको। और यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी तो काम करती है, सब इक्वल है, उस पे काम करती है। और यहाँ पे कुछ ही लोगों के हाथ में पावर आ गई है। कैपिटलिज्म जो कंट्री होती है, जैसे अब कुछ पर्टिकुलर कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हो जाए या एक ग्रुप हो जाए जो पूरा कंट्रोल करे उस कंट्री को, तो उसको बोलेंगे कैपिटलिज्म। और डेमोक्रेसी होगी जिसमें सब अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, सब अपनी बात रख सकते हैं। कैन नॉट को एग्जिस्ट, तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। अगर आपको इन दोनों के बारे में पता है थोड़ा सा, आप आराम से इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो कि भैया कैपिटलिज्म अलग चीज हो गई, डेमोक्रेसी अलग चीज हो गई, दे कैन नॉट को एग्जिस्ट। या आप अपना एक स्टैंड लेके चल सकते हो कि नहीं, दे कैन को एग्जिस्ट एज वेल। तो मिक्सचर भी हो सकता है दोनों चीजों। तो आप जरूरी नहीं कि जो बोल रहा है उसी के साथ जाओ, आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो, दे कैन को एग्जिस्ट भी बोल सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपको कितना अच्छे से प्रेजेंट करना आता है उस चीज को। और दूसरा टॉपिक, इट वॉज अ जनरल। In a management, we do not need people who have never experienced setbacks. मतलब वो ये बोल रहा है कि हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए जिन्होंने कभी फेलर देखा ही ना हो, बिकॉज जिन्होंने कभी फेलर नहीं देखा होगा, दे आर हाई चांसेस कि वो बाद में जाके फेल होंगे। तो what we are looking for in management, we are looking for a management in most of the B school, they are looking for the experienced people who have already some experience, they have already some kind of startup or setbacks, they have already seen that. तो बाद में जाके उनको दिक्कत नहीं है कि they have already earn some experience। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा टॉपिक, मतलब ये जनरल टॉपिक है, इसमें आप लिख सकते हो आराम से, ये थोड़ा नॉलेज बेस्ड टॉपिक। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर
नॉलेज बेस्ड टॉपिक आए और आपको नॉलेज नहीं है उस टॉपिक की, तो चूज करना दूसरा वाला अगर चॉइस आती है। ये 2022, 2021, 2020 एंड 2019 देवर नो ऐसे, देवर नो ऐसे, हटा दिया था उन्होंने। कोरोना वोरोना की वजह से भी था पेपर, और वैसे भी हटा दिया था। 3 साल कोई ऐसे नहीं था। उससे पहले आता था 18 में आया था एथिकल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, डू दे एग्जिस्ट। अब यार एथिकल प्रैक्टिस क्या है? एथिकल प्रैक्टिस है कि भैया मैं कोई भी एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन उसमें आप कितना सस्टेन हो पाओगे ये भी देखना पड़ेगा। क्या पॉसिबल है कि कोई फैक्ट्री जो ऐसा चीज बना रही है कि उससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, पॉसिबल है? क्या वो अनएथिकल नहीं है? लेकिन क्या वो सस्टेनेबल है? अगर वो चाहेगी कि यार मैं पूरा ग्रीन बेल्ट लगाऊं, या मैं अपना कोई भी जो यहाँ से डंप है वो उसमें ना फेंकूं, क्या वो सस्टेन कर पाएगी? तो अगेन आप बोल सकते हो कि यस दे कैन को एग्जिस्ट, देयर आर सर्टेन कंपनीज हु आर यूजिंग दीज प्रैक्टिसेस जिसमें वो एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचा रही, गलत भी नहीं कर रही और फिर भी वो कम प्रॉफिट कर रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कर रही है। मैं भी आपको इसका एग्जाम्पल दूंगा। आई थिंक मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई थिंक यही वाला लिखा है, इसको मैं डिटेल समझाऊंगा कैसे करना है। ठीक है, देखेंगे अभी। जैसे ये वाला मैं बता रहा था, ग्लोबलाइजेशन एंड जिंगोइज्म ऑलवेज को एग्जिस्ट। तो ग्लोबलाइजेशन तो हो गया कि भैया हम अपनी जो इकोनॉमी है उसको हमने खुला कर दिया, बाहर से लोग आ भी सकते हैं, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों चीजें कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन में बेसिकली 3 चीजें होती है। ग्लोबलाइजेशन में आप एक तो सामान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ठीक है। तीसरा आप लोगों का, लोग इधर उधर जाते हैं, मूव करते हैं, राइट। तीसरा होता है आप नॉलेज शेयर करते हो उधर से उधर कि हम हमारी कंट्री में ये चल रहा है, आपकी कंट्री में टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है। 3 चीजें होती है ग्लोबलाइजेशन में। और जिंगोइज्म हो गया कि भैया नहीं, हम तो बंद के अपनी, हमारा दायरा हो गया सीमित, हम तो यहीं पे हैं, कुएं के मेढक हैं, हम तो यहीं पे रहेंगे, हम ना कंट्री से बाहर जाएंगे, ना कंट्री से किसी को अंदर आने देंगे। चाइना के बारे में अगर बात करोगे, पाकिस्तान के बारे में बात करोगे, तो हम उसको रिटेलिएट करेंगे। तो क्या वो एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसके बारे में था ये टॉपिक। लिखा जा सकता है, अगर थोड़ा सा पता है आराम से लिख सकते हो। टेक्नोलॉजी एंड नेचर और नेचुरल एनिमीज, जो अभी मैं ऊपर बता रहा था मैं, एक तरफ टेक्नोलॉजी एक तरफ नेचर, क्या वो नेचुरल एनिमी है? अगर आप टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हो तो डेफिनेटली नेचर को हार्म होगा, इमिशन निकलेगा, कार्बन इमिशन निकलता है, नेचर को हार्म होता है। क्या वो नेचुरल एनिमी है? आप अगेन यस और नो में जा सकते हो। तो आप बोल सकते हो कि वी हैव टू मेंटेन ए बैलेंस काइंड ऑफ थिंग इन बोथ द थिंग्स। वी कैन नॉट सर्वाइव अगर हम टेक्नोलॉजी को एडवांस ना करें, एंड ऑन द सिमिलर हैंड या ऑन द अदर हैंड वी हैव टू कंसीडर द नेचर का ख्याल भी हमें रखना पड़ेगा। तो आप उसका एक बैलेंस अप्रोच लेके चल सकते हो। आप जरूरी आप पूरा ही फॉर या पूरा ही अगेंस्ट में जाओ। यू गेटिंग इट? मैं क्या समझा रहा हूँ? तो अगर थोड़ा थोड़ा इस तरह से समझोगे ना, तो आपको एक अच्छा ऐसे लिखने की आदत पड़ेगी। लिखना शुरू करो थोड़ा थोड़ा। लिसनिंग इज अ डाइंग आर्ट, वी हार्डली लिसन टू अंडरस्टैंड, वी ओनली लिसन टू रिफ्यूट और रिप्लाई। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं सुनता आजकल। हम समझने के लिए नहीं सुनते, हम तो भैया वेट करते हैं कि हमने सुना और हम उसको रिप्लाई करेंगे, हम सिर्फ उतना ही सुनते हैं। जब अपने मतलब की बात होती है तब सुनते हैं। तो ये जनरल टॉपिक है, आप इसमें लिख सकते हो। कहानियां लिखना तुम्हें आता है, इसमें तुम लिखते जाओगे फट्टे, लेकिन स्ट्रक्चर वे में लिखना। The most beautiful thing can either be seen nor be touched, can neither be seen nor be touched, but can only be felt. Again, it's a general, and most beautiful thing can be different for different people. It can be kind of emotions. अगर मान लो जब एक अगर आपने वीडियोस देखे उस तरह के, जब एक सोल्जर अपने घर जाता है बहुत दिनों बाद, 1 साल के बाद, और उसका जो छोटा बेबी होता है, जो एनिमल होता है, जब वो मिलते हैं, तो एक वो जो मूवमेंट होता है वो डेफिनेटली इट कैन नॉट बी सीन और टच, इट कैन बी फेल्ट। जो खुशी होती है उनके चेहरे पे, वो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, राइट। तो डिफरेंट ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल मूवमेंट कैन बी जस्ट कैप्चर्ड in the memory. It cannot be seen by our eyes or cannot be touched, it can be just felt. तो बहुत अच्छा ऐसे था, बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती थी। अगेन पूरा इमोशनल पे बेस्ड था, ये इमोशंस पे बेस्ड था, तो डिपेंड करता है। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन इंडिया। अगेन बहुत सिंपल सा ऐसे है, सबको पता है करप्शन क्या है, कॉज क्या है, तुम इसमें आराम से लिख दोगे। तो मतलब ऐसे बहुत मुश्किल ऐसे नहीं है। तो अगर आप नोटिस करो पिछले 6-7 साल में ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं आया, ये आप आराम से लिख सकते हो। सस्टेनेबिलिटी, ये थोड़ा बस जिंगोइज्म वाला जो था वो थोड़ा मुश्किल था, बाकी आराम से लिखा जा सकता है। घबराओ नहीं, भी आता है स्ट्रक्चर करो उसको सही से, जितना आता है उतना लिखो। ये इस बार के हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेड है मैंने थोड़ा सा लिस्ट डाउन किया 2023 के लिए। डिजिटल एजुकेशन जो अभी
तुम देख पा रहे हो ऑनलाइन एजुकेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है, छोटे बच्चों से लेके सभी कोई ऑनलाइन एजुकेशन में आ चुका है। तो क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है ट्रेडिशनल एजुकेशन से, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। प्रोज एंड कॉन्स क्या है दोनों के। मैंने पूरा एग्जैक्ट टॉपिक नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। इस आइडिया पे आपको सोचना पड़ेगा कि भैया ऑनलाइन एजुकेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या दोनों साथ में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। कोएग्जिस्ट करके काफी सारे ऐसे हैं तो आप बना सकते हैं इसको। अच्छा टॉपिक हो। रशिया यूक्रेन तो पढ़ते ही जाना, चांसेस हाई है इस बार, ठीक है। कोविड पेंडेमिक हैज डिरेल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अगेन। कोविड के बारे में आपको पढ़ के जाना ही जाना है इस साल अगर आप जा रहे हो तो, चाहे वो वैट हो चाहे कोई भी इंटरव्यू हो। ये सारे टॉपिक ना सिर्फ ऐसे में काम आएंगे आपके, अगर इन पे काम कर लोगे, ये सारे टॉपिक मैंने जो लिखे हैं ये वैट के टाइम पे भी काम आएंगे और इवन इंटरव्यू के टाइम पे भी काम आएंगे। तो ये आपका मल्टीपल जो एस्पेक्ट है सेकेंड स्टेज उसको फुलफिल कर रहे हैं सारे टॉपिक, तो इनको देख के जाना बिल्कुल, बहुत अच्छे टॉपिक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज मोर रिलेवेंट नाउ इन इंडिया, कि भैया यूनिटी इन डाइवर्सिटी के भाई क्या हो रहा है, मिडिल क्लास लोअर क्लास डाइवर्सिटी, फीमेल मेल जेंडर बाइज, बाकी रिलीजन एंड कास्ट, तो अभी कितना इंपॉर्टेंस बढ़ चुका है। सब मिलके काम करेंगे तो आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, किस तरह से आप उसको लिख सकते हो। Unless agriculture is practiced as business, it will not improve the face of rural India। तो रूरल इंडिया में जो किसानों की हालत है, जब तक आप बोल रहे हो कि जब तक उसको बिजनेस में नहीं लाओगे तब तो उनकी हालत इंप्रूव नहीं होगी। ब्लूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन स्टिल हॉन्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। डीमोनेटाइजेशन अगेन आइडिया है तुम्हें। यूनिकॉर्न हब बनता जा रहा है इंडिया वर्ल्ड का, यूनिकॉर्न के बारे में पढ़ के जाना क्योंकि बहुत सारी कंपनीज यूनिकॉर्न बन रही है इंडिया। पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो मैं बोल रहा था, कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो ये है कि सबका साथ सबका विकास, अपना अपना एजेंडा, ये कोई आएगा कि भैया इसके फेवर की बात करेंगे, कोई दूसरे पार्टी की फेवर की बात करेगा। और यूनिवर्सल सिविल कोड अलग चीज हो गई, वो सबके लिए सेम लेके चल रहा है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन को फेवर नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि सबके लिए सेम होना चाहिए। तो क्या वो साथ में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इसके बारे में पढ़ना, क्योंकि ये अब कई जगह कई स्टेट में लागू होने वाला है। द चैलेंज ऑफ ए टू फ्रंट वार, इंडिया पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये मतलब बिल्कुल करंट हॉट टॉपिक है, बहुत अच्छे टॉपिक है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज गेन करो और ये आपका मल्टीपल यूज होगा कई जगह। अवॉइड थिंग्स, डोंट डू इट। पैराग्राफ जैसे मैंने बोला लिखते मत चले जाना इकट्ठा। इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन अलग अलग होना चाहिए। नो रिपीटेशन ऑफ पॉइंट, कि ऊपर भी वही लाइन लिखी इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, और ये जो तुम लिखते हो आउट ऑफ द वर्ल्ड आर कंट्री इज द बेस्ट बिकॉज दिस, तो वही चीज रिपीटेशन नहीं होना चाहिए वर्ड का, कि एक ही पॉइंट को दोबारा दोबारा उसी पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में लिखना शुरू कर दिया। नो अननेसेसरी वर्डीनेस, फालतू की बातें नहीं इधर उधर की। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट, वर्डीनेस नहीं चाहिए। मैंने जैसे बोला था नॉलेज चाहिए, टू द पॉइंट चाहिए। तो बड़ा और छोटे से आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। जितना कम कंटेंट बट सही कंटेंट लिखोगे उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नो क्लमजी सेंटेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, फुल स्टॉप कॉमा सब कुछ। पंक्चुएशन बहुत आराम से लगा के चलनी है, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन एरर नहीं होनी चाहिए। क्लीचे और शॉर्ट फॉर्म कैप टू बी ए मिनिमम। क्लीचे नहीं चाहिए गाइस कि भैया फालतू की लैंग्वेज यूज कर रहे हो या शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हो, ऐसी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। हाई फाई लैंग्वेज नहीं चाहिए। प्रिपरेशन भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ो, अपडेट करो अपने बारे में, जैसे मैंने बताया अभी। राइट अ पेज डेली ऑन ए डेली बेसिस, ये अभी से कर सकते हो, क्योंकि देखो जैसे मैंने बोला आदत नहीं है काफी लोगों को, तो ये सिर्फ ऐसे में काम नहीं आने वाला है, जेड में नहीं काम आने वाला है। आप बोलोगे कि हम तो एक्सेलरी के टारगेट ही नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, आप वेट तो दोगे हर एग्जाम में, इंटरव्यू तो दोगे। तो जब तक आप लिखने की आदत नहीं डालोगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं टॉपिक के बारे में, तब तक आप यहाँ पे भी अच्छा नहीं करोगे। तो ये सब करना शुरू कर दो अभी से, वेट मत करो कि कॉल आएगा उसके बाद करना, नहीं, अभी से करो। तुम पूरा दिन तो पढ़ते नहीं हो, 1 घंटा निकालो इसके लिए, क्या दिक्कत। रिवाइज ग्रामर, इनिशियली यू माइट टेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक, मेक ए लॉट ऑफ मिस्टेक, बट प्रैक्टिस करते रहो। कीप द लैंग्वेज सिंपल एंड सेंटेंस शॉर्ट। बड़ा सेंटेंस इकट्ठा नहीं लिखना कि एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, ऐसा नहीं। ये जैसे मैंने बोला था, इथिकल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, डू दे को एग्जिस्ट। तो इसमें आप जैसे ही आपको ये टर्म पता चली, एथिकल प्रैक्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी, तो इसके बारे में आपकी जो दिमाग में आइडिया आना शुरू होना चाहिए, कैसे होनी चाहिए, ऐसे की प्रिपरेशन शुरू हो जानी चाहिए दिमाग में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, एथिकल प्रैक्टिस क्या है,
क्या होती है एथिकल प्रैक्टिस? हमें कोई गलत चीज नहीं करनी है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना, टेक्नोलॉजी से हार्म नहीं होना चाहिए। वाई डू इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस अनएथिकल मीन्स? क्यों जाते हैं लोग इसकी तरफ, अनएथिकल मीन्स की तरफ? व्हाट डज सस्टेनेबिलिटी मीन? तो ब्रेक करो उस टॉपिक को, एथिकल प्रैक्टिस, सस्टेनेबिलिटी, उसके बारे में थोड़ा सा सोचो, लिखो क्या वो कोएग्जिस्ट कर सकते नहीं कर सकती। बिस्लरी अगर अपनी पानी को अगर प्लास्टिक की बोतल में ना बेच के कांच की बोतल में बेचेगी तो क्या पॉसिबल है? प्लास्टिक की बोतल से तो हार्म होता है। क्या बिस्लरी उसको ग्लास बोतल में बेच सकती है? नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाएगी, बहुत महंगी है। तो अब क्या ये एथिकल नहीं है, लेकिन क्या वो सस्टेनेबल भी है? आर यू गेटिंग द एग्जाम्पल? तो आपको उस तरह के एग्जाम्पल पोर्ट्रे करने पड़ेंगे। तो कर सकते हैं, लेस हार्मफुल मटेरियल बनाएं, इनके पास एक ऐसी वो लगाएं, या एनवायरनमेंट को वो करने के लिए कि भाई उसको रिसाइकिल कर सकें किसी तरह, उस प्लास्टिक को, उस तरह की प्लास्टिक यूज करी जा सकती है। तो बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों चीजों को। मोटिवेशन क्या होता है अनएथिकल प्रैक्टिस का? प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग होती है, रेगुलेशन एंड पेनल्टीज इम्पोज करके दोनों को साथ में कोएग्जिस्ट कराया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करें, इंसेंटिव गवर्नमेंट देगी या कस्टमर को दिया जाएगा, तो ये कम कराई जा सकती चीज है। तो लोग बेसिकली सस्टेनेबिलिटी भी होंगे अगर गवर्नमेंट उस तरफ काम करेगी, और वो जो अनएथिकल प्रैक्टिस है उनको भी कम करेंगे। तो दोनों चीजें साथ में जा सकती हैं अगर ये सब चीजें होंगी तो बेनिफिट क्या होते हैं इसके? बेनिफिट, कस्टमर्स बेनिफिट होंगे, एम्प्लॉय खुश रहेंगे, इन्वेस्टर आएंगे, लॉन्ग टर्म व्यूज बढ़ेंगे आपके, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली फायदा होगा। तो आप सस्टेन भी कर पाओगे और आप एथिकल प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो सस्टेनेबिलिटी इज नॉट एन एथिकल चॉइस बट द ओनली लॉन्ग टर्म चॉइस फॉर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सस्टेनेबिलिटी ना सिर्फ एथिकल है बल्कि लॉन्ग टर्म में आपको ये करना ही पड़ेगा पीपल और ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो एथिकली करो, मेंटेन करो दोनों चीजों का बैलेंस, एंड देन डेफिनेटली यू कैन सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम रादर यूजिंग अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉर मोस्ट ऑफ इट। तो मतलब मैंने एक आइडिया दिया है, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। अगर आप इस तरह से ब्रेक करके उसको सोचोगे, तो उन पॉइंट्स को सोचो, तो आप अच्छा लिख पाओगे। लिखना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आप 2 लाइन के बाद ही रुक जाओ कि आप क्या लिखें। तो पहले 3-4 मिनट की प्रिपरेशन करो, उसके बाद लिखना शुरू करो। तो आई एम श्योर कि आपने ये सारे जो पॉइंट्स देखे हैं, ये सारे जो ऐसे मैंने आपको बताए, इन पे सोचोगे, इन पे काम करोगे, और डेफिनेटली इस सेशन के बाद आई एम श्योर कि आप जितना पहले लिख पाते हो उससे बेटर ही लिख के आओगे, खराब तो नहीं लिख के आओगे। ठीक है? सो इफ यू again like the video, you can just share it and like it and subscribe the channel as well. So see you for the next video. Bye.